Hello my dear students, so this is the second part of our video of money and banking, and in the first video we have done the meaning and functions of money, and here in this video we will discuss the functions of money as primary, secondary and contingent function. So let's not waste the time and start. Okay, so here we have taken the chapter money and banking, and while giving the definitions and meaning of money, we almost covered the medium of exchange and measure of value. But in this session, we will start and this topic again and try to describe it little bit more. Okay, so the functions of money, the first functions here is the medium of exchange. So means money performs the functions of exchange. This means with the help of money, we can exchange any goods and services, which was not possible in the barter system, because we know that in the barter system we used to have commodities as a medium of exchange, and just because of this we sometimes faced problems like lack of double coincidence of bonds. So medium of exchange try to somehow, this means eliminate those डिफिकल्टीज. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ मनी हम लोग कोई भी चीज इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे क्रॉथर एंड वाकर के डेफिनेशंस में भी हम लोगों को मिला था. देन द सेकंड फंक्शंस वी हैव टेकन हियर इज द मेजर ऑफ वैल्यू. दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी चीज का कितना वैल्यू हुआ है उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं. सो मनी is the measuring unit of any goods and services, the value of any goods and services. So medium of exchange and measure of value, these two functions are known as the primary functions of money. This means ये दो functions क्या करते हैं, मनी का एक basic functions के रूप में perform करते हैं. And then for the secondary we have standard of deferred payment. In this point the deferred is important and the key point, because the deferred means the payment in future. डिफर्ड का मतलब ही होता है कि जो पेमेंट हम लोग फ्यूचर में कर सके. सो मनी के हेल्प से हम लोग किसी भी पेमेंट्स को फ्यूचर में करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं. किसी भी चीज का अगर हम लोगों को फ्यूचर पेमेंट करना है तो वो हम लोग मनी की हेल्प से कर सकते हैं, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम, बिकॉज वी नो दैट जो गुड्स है उसको हम लोग बहुत वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते थे. जो ग्रेन्स है या फिर जो एनिमल्स है उनको एकदम लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग उसको पेमेंट नहीं कर सकते थे. सो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज अ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड मीन्स हियर इज द फ्यूचर पेमेंट. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आज हम लोगों ने लिया है, उसका पेमेंट अगर हम लोग को 10 साल बाद भी करना है तो विद द हेल्प ऑफ मनी हम लोग वो कर सकते हैं. एंड देन द लास्ट इज this means for the primary and secondary, the last is the store of value. with the help of money ये और ये functions कुछ this means मैच करते हैं. ठीक है. so standard of deferred payment and store of value. store of value, this means with the help of money we can keep the value of the goods and services. किसी भी चीज का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी की हेल्प से स्टोर करके रख सकते हैं, जो गुड्स के टाइम पर पॉसिबल नहीं था. ये शायद आई थिंक इन द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो आई डिस्कस. जैसे अगर कोई गुड्स है उसको अगर हम लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं for 1 to 2 years, the value may be increase or the decrease, but with the help of the money we can store the value of those goods. It may be increase and decrease, but for the goods it may be there is the high chances of spoil, there is the high chances of destroying of that item. but मनी के हेल्प से हम लोग उस गुड्स का वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं. आज उस गुड्स को हम लोगों ने बेच दिया, उसके रिटर्न में हम लोगों को जितना पैसा मिला उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. एंड वी नो दैट मनी का ड्यूरेबिलिटी है. दिस मीन्स वी कैन कीप स्टोर दैट. These two functions, medium of exchange and measure of value, are the two primary functions, and then standard of deferred payment and store of value are the secondary functions. ठीक है. So basically functions of money में ये चार functions आप लोगों के लिए बहुत important है. The contingent functions ये सब derived functions है. So आप लोग इसकी ये जो points है इसके अलावा दूसरा points भी आप लोग लिख सकते हो. So contingent functions, this means the some extra functions. तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है contingent functions में measure of national income. We know that नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री में जितने भी लोग है वो लोग जितना अर्न करते हैं उनका सम टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. सो ये सम टोटल जितनी भी लोग इनकम कर रहे हैं उनका सम टोटल हम लोग किस फॉर्म में कर रहे हैं,
उनका इनकम हम लोग किस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, मनी के फॉर्म में. सो वी कैन सी दैट मनी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम. टोटल नेशनल इनकम कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास अभी क्या है, मनी है. इन द प्रीवियस टाइम जब मनी इवॉल्व नहीं हुआ था उस टाइम हम लोग ये नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे. And then the next is the distribution of national income. As the calculation of national income can be done with the help of money, similarly the distribution of national income is also can be done with the help of money. Total income जितना हुआ उसको different sectors में different factor payments में हम लोग divide कर सकते हैं with the help of money. Then is the basis of credit. Basis of credit, this means credit we know ना फॉर द फ्यूचर पेमेंट, या फिर किसी को हम लोगों ने चेक दे दिया तो ये चेक देने का मतलब क्या है, ये चेक का मतलब क्या है, हम लोगों के पास जो पैसा होगा तभी हम लोग चेक दे पाएंगे. सो ये पैसा है मतलब मनी है. सो मनी परफॉर्म इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट. आज के टाइम पर जितने भी चेक्स, ये फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है इनका बेसिस क्या है, मनी. अगर मनी नहीं होता तो ये क्रेडिट क्रिएशंस, क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते. फोर्थ इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शंस. ओके, सो ये सब फंक्शंस हम लोगों के डेली लाइफ में होते हैं. इसको कौन हेल्प करता है, मनी हेल्प करता है. ये फंक्शंस के अलावा अगर आप दूसरा फंक्शंस भी लिखना चाहते हो देन इट विल बी ओके. ठीक है, कॉन्टिजेंट फंक्शन, दिस में बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस. सो ट्राई टू कीप द फंक्शंस इन कैटेगरीज. ठीक है, ये जैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक कैटेगरी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एक कैटेगरी हो गया. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस मीन्स वी नो दैट कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने डिस्कस किया है. फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हाट कंज्यूमर्स डू, कंज्यूमर्स वांट्स टू इक्वलाइज हिज मार्जिनल यूटी विद द प्राइस ऑफ द गुड्स. सो ये प्राइस ऑफ द गुड्स किससे मेजर होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स किससे मेजर होता है, विद द हेल्प ऑफ मनी. सो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ मनी कंज्यूमर्स क्या करता है, एक उसको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ या फिर वो कितना मैक्सिमाइज अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है, वो मनी के थ्रू से हेल्प कैलकुलेट करेगा. ठीक है. एंड 5 इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. वी नो दैट कैपिटल का प्रोडक्टिविटी, दिस मीन्स उसको और हम लोग कैसे क्रिएट कर सके. एंड वी नो दैट मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑफ कैपिटल. Money, this means capital in the sense we know that land is the capital. We can have some property like building. ये सब क्या है, capital है. So ये सब capital थोड़े liquid assets में नहीं है. This means अभी हम लोगों को चाहिए, हम लोग अभी इसका use नहीं कर सकते. But with the help of money वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. सो मनी क्या करता है, कैपिटल के प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करता है. अगर हम लोग के पास कोई कैपिटल है जो मनी के फॉर्म में है उसको हम लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे और कैपिटल क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं. सो ऑल दिस अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी. दिस ऑल आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस एंड दिस इज द कॉन्टिजेंट फंक्शंस. आई विल प्रोवाइड दिस एज द पीडीएफ ऑफ द नोट्स ऑल्सो.